Hello everyone, my name is Professor Akshay Jande. I'm the owner cum teacher for Akshay Study Circle. And today what we are going to discuss. Today we are not going to discuss about any chapter or anything like any doubt solving session or anything. But what we are going to discuss is how to get 80 on 80 in bookkeeping and accountancy. Yes, definitely I'm talking about SYGC Maharashtra State Board or HSC Maharashtra State Board. This video is especially made for Maharashtra State Board students, especially those students who are living in Mumbai and Thane. I'm addressing to those people, those who are residing nearby, and if they want any help from me for doubt solving or anything, they can connect me at any point of time. My mobile number is 9022380636, and we are purely for commerce-based coaching classes. I'm into this industry from last 19 years. So we'll proceed on. So if anyone wants any type of help, then you can just call on this number and you can contact me at any point of time for free doubt solving sessions. So I will straightly starting with bookkeeping and accountancy. Now what are the factors you will consider when any student wants to get 80 on 80, or at least who is an average student is just scoring 35, 40, 45 marks and he wants to enhance his score, say about 65, 70 marks, then what are the points he should consider at this end time preparations? Now everywhere the batches have been at the closure and prelims are on. We have already completed 2 prelims. We have planned 3rd prelim, and so there are many type of different psychologies working in the student community. So what are the points everyone should trust on? So this is important. So आपका फ्रेंड्स तो अलग अलग कॉलेज है, अलग अलग कोचिंग क्लासेस है, अलग अलग एक्सपीरियंस लोग से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किसका एडवाइस को आप ट्रस्ट करोगे, ये बहुत मैटर करेगा आपका ग्रोथ में. दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर, दिस विल डिसाइड योर एडमिशन इन डिग्री कॉलेज और योर स्कोरिंग एंड अदर थिंग्स. सो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 80 on 80 लाना, परफेक्शन कैसे लाना है, ये वीडियो उसके लिए है. दूसरा, जो लोग को स्कोरिंग बढ़ाना है, ये वीडियो उनके लिए, जिसका 45, 50 एंड ही वांट्स टू स्कोर अराउंड 65, 70, 75 मार्क्स तक जाना है, तो ये उनके लिए. तो स्पेशली आई एम एड्रेसिंग दिस क्राउड. सो स्टार्टिंग विद योर बीके पेपर पैटर्न, 20 marks is for objectives in bookkeeping. So 20 marks is very important. Whether you want to pass out, whether you are an average student, whether you are a student who wants to top, who wants to get 80 on 80. So foremost criteria is कि what is in your mind. You be clear. I want to get 40 marks, I want to get 50 marks, I want to get 70 marks, I want to get full 80 marks. And whatever category you fall, but you will have to score 20 on 20 for objectives. There is no other option. Because in first 20 minutes, you will be getting 20 marks. If your passing is 28 and you can score 20 marks in first 20 minutes, then your scoring probability is high. Forget about passing. Passing is a very tiny thing in bookkeeping and accountancy. It's a very important part where 28 marks is passing and you are getting 20 marks in first 20 minutes. This will be a booster for you. Now what you should do if you want to score 20 on 20? So what you will do is
You just go through government textbook, Maharashtra State Board government textbook, and solve all the objectives. All the objectives. And even this you can do for all the subjects BK, ECO, CSP. So 20 marks, and if you see out of 80, 20 marks, that comes to 25% of your paper. Don't take it very lightly. It comes to 25% of your paper. So this is the point where you have to bang, and majority of the student think 20 मार्क में से 15 तो आ ही जाएगा, 12 तो आ ही जाएगा, 14 तो आ ही जाएगा. But if you are going to sit for board exam, you have to slog for objectives. Especially those students, those who want to get 80 on 80, or they want 28 of 80, or they want to just pass. They want to get 35, 40%, 45%. They have not prepared till now. This strategy is going to work like anything for you. So 25% of the paper you get in first 20 minutes. What else you want? And if you want 100% surety, then there are n number of objective books available in the market. You can even refer after you complete the state board textbook objectives. Then only go for private textbook. You can take Chetna, Navneet, Target, anything, whatever you like, or Reliable, or anything you like, whatever is your criteria. Because objectives जो भी हम लोग डालते हैं वो बोर्ड में जो पहले पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स हैं वही रिपीट होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा, तो 20 on 20 के लिए ये दो चीज आपको करना है. थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कीजिए. दैट इज फॉर फाइनल अकाउंट्स. अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि सर मेरे को फाइनल अकाउंट आ रहा होता तो मैं आपका वीडियो थोड़ा ना देखता. सिंपल सी स्ट्रेटेजी है उसकी कि मेरे को तो पास होना है. कौन क्वेश्चन नंबर 7 इतना ज़्यादा मार्क्स के लिए टैली वैली करते बैठेगा? तो भैया टैली मत कर, तुझे तो पास होना है. तू खाली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना ले. ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में डाल दे, डेबिट में और क्रेडिट में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक पेज में फॉर्मेट में दिया, रट ले. तभी देखो एक मिनिमम 8 से 9 मार्क तो मिल जाएगा. खाली पोस्टिंग और एडजस्टमेंट करने का. एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकता है, खाली पोस्टिंग कर ले भैया. ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में इनकम और एक्सपेंस को बाइफरकेट करना कोई भी कर सकता है. टैली मत कर. टैली करने का मार्क्स ही कितना है? टैली तो उसको करना है जिसको 80 में से 80 लाना है, जिसको पास आउट होना है. उसके लिए क्या ही है? ये बहुत सिंपल सी चीज है. इसलिए जिसको पास होना है उसको 3 टॉपिक, 3 चीजें करनी है. एक ऑब्जेक्टिव्स, फाइनल अकाउंट्स का पोस्टिंग, अगर हो सके तो एडजस्टमेंट में से जैसे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आती है, डेप्रिसिएशन की आती है, और अनरिकॉर्डेड सेल्स या परचेस आती है, और अपना डेटर्स आता है, बैड डेट्स वाला जो आरडीडी वाला एडजस्टमेंट है. ये 4-5 जो आपका एडजस्टमेंट है वही रिपीट हो रहा है एवरी ईयर. नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस. खाली कोई 2 सम कर लो तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स का. अगर ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे पास आउट होना चाहते हैं, मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ इसमें, जो बच्चे पास आउट होना चाहते हैं या 40 मार्क्स तक लाना चाहते हैं, तो आप 3 टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए. अगर आपका क्राइटेरिया एनीवेयर बिटवीन 35 to 45 मार्क्स है, पास आउट से थोड़ा ज़्यादा है, तो यू प्रिपेयर ओनली 3 ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट इज 20 मार्क ऑब्जेक्टिव, देन फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीयू. आप पूरा बुक मत करते बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है. पास आउट होना है, 3 टॉपिक कर लो, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनल अकाउंट्स और एनपीयू. अब इसमें मैं जो बोल रहा हूँ फाइनल अकाउंट और एनपीयू का खाली पोस्टिंग कर लो भैया. कोई टैली करने की जरूरत नहीं, कोई टोटलिंग करने की जरूरत नहीं. तो भी
आप कहीं ना कहीं 38 मार्क्स के अराउंड पहुंच ही जाओगे। ये मैं मिनिमम एकदम फ्लोर लेवल पे पकड़ रहा हूँ। अगर आपने टैली कर दिया तो यू आर अबव 40 विद इन लास्ट मिनट रिविजन। और जो बच्चे स्कोरिंग करना चाहते हैं, जिसको अपना स्कोर बढ़ाना है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव तो करना ही पड़ेगा। फाइनल अकाउंट एनपीओ, चाहे टैली मत भी करो, आई एम रिपीटिंग, चाहे टैली मत भी करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो और 2 3 4 5 मार्क आपका कटेगा अगर आप टैली नहीं करो दोनों क्वेश्चंस में लाके, तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर आपका स्कोरिंग, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिसको स्कोरिंग थोड़ा बढ़ाना है लेकिन प्रिपरेशन उतना हुआ नहीं है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अराउंड आप 50-52 मार्क्स पहुँच जाओगे। उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करने पड़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है, उसको विथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एनपीओ विथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एनपीओ में ज़्यादा 3 वैरायटी है टोटल पूरे सिलेबस में, उसमें से 2 ही वैरायटी ज़्यादा आती है। कौन सा? सबसे पहला आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ जो वैरायटी आती है, रिसीव पेमेंट और ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों दिया हुआ रहता है। और दूसरा जहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। ये 2 ही वैरायटी आज तक ज़्यादा से ज़्यादा आती है। हार्डली देयर आर 5% चांस ऑफ दे विल टेल यू टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, तो वो वाले सम करो ही मत। आप सीधा सीधा 2 ही वैरायटी के ऊपर फोकस करो और पोस्टिंग और एडजस्टमेंट करो। टैली नहीं भी करोगे तो भी यू विल बी क्रॉसिंग 40 मार्क मिनिमम, बट यू हैव टू पोस्ट एंड यू हैव टू डू give the effects of both the adjustment in final account and NPO. Next easy topic for scoring is computer awareness का theory. Again I am repeating, थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप कोई भी बोर्ड का पेपर को आप एनालाइज कर लेना, लास्ट जो भी प्रीवियस पेपर से आपको देखोगे कि जहाँ पे आप सम नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस का थियरी कर सकते हो। 8 मार्क का आंसर है। एवरेज बच्चे को क्या चाहिए? 1 घंटा बिताएगा उस चैप्टर पे। कंप्यूटर अवेयरनेस में है ही क्या? जो आपको ऑलरेडी 9th-10th में आता था वही चीज़ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई नया चीज़ नहीं। 8 मार्क फ्री में मिल रहा है, भैया जल्दी ले लो, क्योंकि आपकी तैयारी वैसे भी नहीं हुई है। और उसके बाद एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, आप उसकी भी पोस्टिंग कर सकते हो, आप। अगेन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रेशियो का पार्ट है, कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड के सम से वो करके जाओ आप। 100% आपको बेनिफिट होगा, 100% बोल रहा हूँ। जो बच्चों ने 45-50 से मार्क्स ऊपर चाहिए तो उसको ऑब्जेक्टिव, उसको फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ का पोस्टिंग, डिसोल्यूशन का पोस्टिंग विद एडजस्टमेंट, यू विल easily score above 50-55 marks. And apart from that, you can go for computer awareness का theory and financial statements. Financial statement में बहुत कुछ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका रेशियो एनालिसिस के कुछ 2-4 फार्मूला है, कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड है और एक कैश फ्लो का पार्ट है। ये 3-4 चीज़ है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए आपको 1 दिन 2 दिन, बहुत तो 3 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं, क्योंकि सारा छोटा छोटा सम्स है, कोई भी बड़ा सम है नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डरो ही मत, आपको करना ही चाहिए। आप आराम से 55 के ऊपर चले जाओगे। और ये सब मैंने उसके लिए बोला है जो बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास टाइम कम है, मैं उनके लिए उनको एड्रेस कर रहा हूँ। और इतना करने पे आपको 50-55 मार्क्स आराम से मिल सकता है। और अगर आपको 80 on 80 जाना है, 80 on 80, you don't have any option. You should not leave
any chapters. Because if your plan A doesn't work, you should immediately start thinking of plan B or C or D, whatever it is. So you should prepare different strategies. If you want 80 on 80, there is no option. मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करके जाऊंगा, मैं रेशियो नहीं करके जाऊंगा, मैं कंप्यूटर अवेयरनेस तो ऑप्शन में छोड़ दूंगा, भाई इससे आपको फुल नहीं मिल सकती. यू डोंट डिजर्व टू गेट 80 ऑफ 80. If you are leaving chapter, how can you be a topper? I don't understand. Majority students, those who are lying between 65 to 75, the problem is with their strategy. You are following wrong strategy. You can't get 80 on 80. You can't get 80 on 80 by skipping the objectives, by skipping financial statement, by skipping any of those chapters. You will have to prepare all the chapters. This is the foremost criteria if you want to score in BK. You should not leave any of those chapters if you want to be a topper. And now I am addressing for those students, those who want to get full marks. I have told about objectives, told about final accounts, I told about NPO, what are the varieties they cover, वो सभी के लिए है. अब डिसोल्यूशन में ज़्यादा जर्नल वाला पार्ट आता है. मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जर्नल वाला ही पार्ट आता है. आउट ऑफ 10 टाइम्स यू कैन ऑब्जर्व द पास्ट पेपर्स, 10 में से 7 बार जर्नल आया होगा, 7 to 8 टाइम्स. ओनली 2 to 3 टाइम्स लेजर आया हुआ है. उसको छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट, और गाइस मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो ये वीडियो तो वायरल होना ही चाहिए, क्योंकि मैं सारा चीज़ आपको आधे घंटे में देने वाला हूँ. कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए. जस्ट यू गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है यू कैन कंसल्ट मी पर्सनली, आई डोंट माइंड. एंड कंसल्टेशन इज टोटली फ्री, है ना. फ्री में तो यार वायरल होना ही चाहिए. तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 80 on 80, ये अगर आपका टारगेट है तो ये वीडियो आपके लिए. आपको ऑब्जेक्टिव्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ. नेक्स्ट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज पे. यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होने का चांस है. कैलकुलेशन का पार्ट बहुत हेवी है, डेसिमल्स है, बहुत से और फिगर्स आते हैं. तो और दूसरा एंट्री, स्पेशली आपका गलती रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी में होगा. इंसॉल्वेंसी में 2 एंट्री है. फर्स्ट एंट्री कोई मारता नहीं, सीधा इंसॉल्वेंट कर डालता पार्टनर को, तो यू मे नॉट गेट फुल मार्क्स. रिटायरमेंट में आप ड्रॉइंग को घुसा देते हो बिल सेबल की जगह, ये कॉमन एक मिस्टेक है. दूसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डिसोल्यूशन का जो जर्नल एंट्री है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो आज तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप लेजर प्रैक्टिस कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जर्नल आएगा. उसके बाद आपको इश्यू ऑफ शेयर ठीक से प्रिपेयर करना चाहिए. डरो मत इश्यू ऑफ शेयर से. इश्यू ऑफ शेयर बहुत सिंपल टॉपिक है, खाली सॉल्व एग्जाम्पल करके जाओ, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करके जाओ. आप सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करो इश्यू ऑफ शेयर का, यू विल बी इजीली एबल टू डू 100%. यू विल बी एबल टू सॉल्व the board exam sums what they are going to ask for issue of shares. And आप 20 मार्क का जो आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जाओ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जाओ, फिर डिसोल्यूशन पे आ जाओ. और ये एक मार्केट में एक ट्रेंड है कि आप एडमिशन ही करोगे. एडमिशन टैली हो गया तो मैंने बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत लिया. आप एडमिशन करो तब ठीक है, आप उसको ऑप्शनल चैप्टर रिटायरमेंट कर लो, डेथ ऑफ द पार्टनर आ रहा है वो करो, आपको मार्क्स तो उतना ही मिलने वाला है. डेथ ऑफ द पार्टनर आपका 10 मिनट में सॉल्व हो रहा है, एडमिशन को आधा घंटा लगने वाला, आप क्या सॉल्व करोगे? नहीं बताओ मुझे क्या सॉल्व करोगे. एक अकलमंद आदमी क्या करता है,
आप तो यार टॉपर हो, टॉपर के ऐसा सोचो, डेथ ऑफ द पार्टनर 10 मिनट में करके निकल जाओ और बचा हुआ टाइम आप टैली करने के लिए डालो। अगर आपका टैली नहीं हुआ तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, आप तो टॉपर हो, पहले टाइम में टैली होना चाहिए आपका। लेकिन अगर नहीं हुआ है, तो भी आपके पास टाइम स्पेयर बचेगा। और जो टॉपर बच्चे दे विल नॉट गो फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस का आंसर। आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर, आई एम नॉट टॉकिंग कि चैप्टर स्किप कर दो। मैंने बोला क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से टॉपिक को किस तरह से अटेम्प्ट करना। पहला ऑब्जेक्टिव करो, फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आप चाहो तो डिसोल्यूशन के लिए जा सकते हो, बिल ऑफ एक्शन के लिए जा सकते हो, और बाद में बचा हुआ एडमिशन या डेथ या रिटायरमेंट जो भी आपको अच्छा लगता है उसके लिए जाओ। यू विल कंप्लीट योर पेपर बिफोर टाइम। टुमारो वी हैव गाइडेंस लेक्चर at my premises, not on YouTube. This guidance lecture I'm going to provide for my students how to complete the paper in 2.5 hours. That will be issued for all my students. So for those who want to get 80 on 80, you have to take the textbook, you have to solve model papers, you have to write all the prelim very seriously. Time bound paper solving होना चाहिए आपका, जो हमारे इधर हम लोग देने वाले हैं अभी हमारे स्टूडेंट्स को model paper solving. Akshay sir is going to teach how to complete the paper of bookkeeping within 2.5 hours. That is what I am known for. And even we have marathon lectures at our premises every year, so everyone knows about it. And if you don't know, you can ping me, I don't mind. Next is most important, सिलेक्शन ऑफ सम। डोंट गो विद द रिजिड स्ट्रेटेजी। मैं तो एडमिशन ही करूंगा, मैं तो डेथ ही करूंगा, मैं तो इश्यू ऑफ शेयर ही करूंगा, मैं तो डिसोल्यूशन ही करूंगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी 100% रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस सिचुएशन को आप अगर इश्यू ऑफ शेयर करके गए और सबसे हार्ड क्वेश्चन उसी का आ गया, अगर एडमिशन पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, बिल ऑफ एक्शन पूछ रहा है, कंप्यूटर अवेयरनेस का थियरी, लेकिन जो चीज़ आपका उतना अच्छा नहीं है और वो आप करके गए, लेकिन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन द एग्जाम, यू विल बी द लूजर। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, डोंट गो विद द रिजिड स्ट्रेटेजी, गो विद द फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी। Flexibility is the key to success in bookkeeping. Flexibility is the key to success. I'm telling you. You follow this strategy, solve as much as model paper as you can. From wherever you want to solve, you solve. It may be the past paper, it may be a model paper, it may be anything. But definitely I like Pragati publications for model paper solving. For model paper solving, I will advise you that you should take Pragati publications. And then this is the way where अगर आपका टैली नहीं भी हुआ, आप टैली करने के पीछे मत जाओ, आप पोस्टिंग करो, एडजस्टमेंट करो और अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। और ऐसे स्ट्रेटेजी डिसाइड करो कि जहाँ पे आपको टाइम बचना चाहिए लास्ट में। जैसे मैंने बोला कि आप डेथ ऑफ द पार्टनर में 2 ही चीज़ पूछते हैं, एग्जीक्यूटर का जो कैपिटल जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट पूछते हैं और 2 वर्किंग पूछते हैं, उससे ज़्यादा बहुत कुछ पूछते भी नहीं है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अकाउंट पूछेंगे, दैट्स इट। वो 2 ही चीज़ पूछते, नहीं तो एक ही चीज़ पूछते, बाकी का 2 वर्किंग पूछते। कैलकुलेट गुडविल, उसका डेथ हो गया तो डेथ होने तक का जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने बोलते हैं, व्हाट यू पुट इन प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये 2-4 चीज़ पूछते हैं, गुडविल निकालो, वही आ रहे सालों से, और फिर भी nobody concentrates on death of the partner. I'm telling you, if you want to be a topper,
debt of the partner will be a game changer, financial statement will be a game changer for you. So please concentrate on, you follow this instruction and solve all the model papers, whatever in the market, 4 papers, 5 papers, 10 papers, whatever is possible, because you want to score full. So this is the only strategy. Next, I am moving to theory part, economics, OC and SP. What strategy you should apply if you want to score full marks? But थियरी में ये बीके नहीं है, फुल दे देंगे, 80 और 80 दे देंगे. आज के बच्चों का एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है कि 80 और 80 आ जाए सर इकोनॉमिक्स में, OC SP में. सो मेजोरिटीली बट आपको 75 के आसपास आ सकता है. अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टॉपर्स आप देखोगे, दे आर अराउंड 70 to 76 और 75 मार्क्स रैंडमली. आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक. तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए. तो क्या वो चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में, अगर आपको अगेन ऑब्जेक्टिव तो ये सभी सब्जेक्ट बीके को OC SP सभी के लिए है. सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैं गाइस पहले ही बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा होने वाला है, तो हैव पेशेंस. आई एम गिविंग यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, सो एटलीस्ट इट शुड बी shared to as much it should be shared to those students, those who are in need of it and they want to get good marks, and just give blessings to me. I'm guiding you at free of cost. And the most important thing is, I'm telling you, if you would tell me sir कितना मार्क्स इकोनॉमिक्स में एवरेजली आता, मैं बोलता हूँ भैया मैं जो स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ 80 मार्क का पेपर है, 70 आराम से आ जाएगा. आज से भी शुरू करेंगे तो 70 आ जाएगा. इतना इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर आपको खाली पास होना है, आप सिर्फ डिस्टिंग्विश कर लो, ऑब्जेक्टिव कर लो और आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स है वो कर लो. ट्रू और फॉल्स मतलब एग्री डिसएग्री इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, वो कर लो. इतना करने पे आप पासिंग से ज़्यादा ही लेके आओगे. क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, इको OC SP में ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड एग्री डिसएग्री, ट्रू और फॉल्स और गिव रीजन, वॉट एवर इट इज. बट जो रीजन्स लिख रहे हो वो बुक का रीजन लिखो, हेडलाइन बना के लिखो, not the way they have given in government textbook. And you should explain the reason fundamentally, then only they are going to give you marks. By this strategy you will be easily able to get around 30, 35, 40 marks. 30, 35 marks randomly, not 40. But 30, 35 marks are easily achievable from here. Whatever is material is given in the government textbook for all those subjects, इको OC SP. अब भैया 80 वाले का थोड़ा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. ऑब्जेक्टिव होने के बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स जो दिलाएगा आपको ये लास्ट के क्वेश्चन है. और लास्ट के क्वेश्चन लगभग रिपीटेड और इजी होते हैं. मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट के क्वेश्चन इजी और रिपीटेड होते हैं. बहुत 4 मार्क वाला है 6 मार्क के लिए पूछेगा, 8 मार्क के लिए 8 मार्क वाला 4 मार्क के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी से हो जाएगा. बट क्वेश्चन ज़्यादा नया नहीं आता है. नया कहाँ पे आएगा, डिस्टिंग्विश है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आ सकता है. शॉर्ट नोट में थोड़ा उन लोग घुमाते हैं आपको. बट इकोनॉमिक्स में अगर स्पेशली आपको अगर ज़्यादा मार्क्स लेना तो सिलेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे डायग्राम बनाना है. डायग्राम का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नेमिंग कीजिए इसके, उसको प्रॉपरली प्लॉटिंग कीजिए, हर चीज़ उसको एक्सप्लेन कीजिए, शेड्यूल बनाइए उसके लिए. ऐसे ही आंसर्स चुनो जो ज़्यादा आपको डायग्राम बनाने के लिए
है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डायग्राम्स नहीं बना रहे करके ज़्यादा स्कोरिंग हो नहीं रही है, ज़्यादा स्कोरिंग हो नहीं रही है। दिस इज़ द मेन रीज़न। और क्वेश्चन नंबर 3 को आप मॉडल पेपर से ये कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बात करूँगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो ही आप लिख पाओगे, वरना क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख नहीं पाओगे। तो मैं बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कुछ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है हर एक चैप्टर के बाद, तो उसको आप देखिए। और मॉडल पेपर सॉल्विंग में भी ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी, इसलिए मैं मॉडल पेपर सॉल्विंग बोल रहा हूँ आपको। और अगर आपको नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, आप देख के कीजिए। इवन यू सी एंड देन यू राइट, देन ऑल्सो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटने का चांस है, बिकॉज यू कैन लर्न एंड गो, यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, बिकॉज देयर आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। दैट इज द यूएसपी ऑफ द एग्जामिनर टू कट डाउन योर मार्क्स। और दूसरा, आपका एग्री डिसएग्री के जो रीजंस है, ये भैया मुझे आता है और मैं लिख लूँगा, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगेन आई विल रिपीट, मुझे आता है और मैं लिख लूँगा, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना while preparing for you are preparing for board exam. This is not your college exam. Lakhs of people are going to sit with you. There's a high level of competition and you want full. How will you get full? In every parameter, you are going to prepare the charts, you are going to prepare diagrams, you are going to give good handwriting, good presentation, and all other things. And all other things, whatever you are going to score, but you have to be the best while writing. If you are not the best, then behave like you are the best. You present it like that. You select those answers which you are going to get full marks. Don't select the common question what everybody is going to write. Select the uncommon questions. Select the uncommon questions. For example, practical difficulty or theoretical difficulty of national income. This answer should be, you should write. This is the answer. This is the answer you should select. So what is important is your mindset. First of all, you should know the paper pattern. You should know what the order I am going to write. If you are skipping the order, then you write properly the question number. Write whatever question number. What I will prepare is, I will do is I will write objectives. Then I will write question number 8, 7, 6, and then whatever I want to write. Because in question number 2 to 5, there are 100% chance of standard deduction. That is why I am telling you कि पहले जो ज़्यादा मार्क वाले उसको उठा ले, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचोगे आप थक गए होंगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले को खाली मैनेज करके ख़त्म कर दोगे पेपर। हाउ विल यू गेट द फुल, नॉट फुल मार्क्स बट बेस्ट मार्क्स? सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज यू प्लान and don't take the strategy of any other student who is adapting. Don't just मेरे सर ने ये बोला, मेरे दोस्त ने वो बोला, मेरे कॉलेज ने ये, कोई किसको सच नहीं बताते। हर किसी को अपना स्टूडेंट को फर्स्ट लाना है और उसका मार्केटिंग करना है। और मैं आपको, आप मुझे क्रेडिट मत देना जब आप टॉप आ जाओ, चलेगा मुझे, बट आपका अच्छा हो जाए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सेल्फलेस वीडियो बना रहा हूँ आज, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ उसके लिए। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इकोनॉमिक्स में आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, 7 एंड 6 पहला लिखूंगा। ये मेरा 1 से 1.5 आवर्स के पहले ये सब हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को टाइम ही कितना लगने वाला है आपको लिखने को, तो भी रेस्ट 1.5 आवर्स है एंड यू आर प्रेशर फ्री। एंड राइट, सिलेक्ट क्वालिटी आंसर्स।
Selection of answer will increase your score. This is the USP in economics. I'll proceed to SP and OC. Common strategy you can adopt for SP and OC. What you should do is, after writing the objectives, again in this OC and SP, you take the same strategy. 8, 7 and 6 को पहला लिखो और रेस्ट ऑफ द डिस्टिंग्विश है, गिव रीजन है, ये सब ट्रू और फॉल्स है, ये सब बाद में लिखो लास्ट में। और इसके लिए भी आप बुक से ही प्रिपेयर करो, ऑब्जेक्टिव्स भी, और सारा चीज सेम रहेगा। अब कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा ध्यान देने चाहिए? एसपी के लिए यू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 to 11, or if you have not started, then start from chapter number 6 to 11. Probably chapter number 6 से लेटर चालू हो रहा है, तो मैं लेटर का बात कर रहा हूँ। I don't remember the chapter number, but chapter number 6 से 11 आप स्टार्ट कीजिए, कम से कम टाइम में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। Once you complete 6 to 11, आपका लेटर्स और पूरा स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का हो जाए, आपका फाइनेंशियल मार्केट वगैरह हो जाए, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 और 3 पे जाइए। मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11 करने के बाद आप चैप्टर नंबर 2 और 3 पे आइए। वरना एक स्ट्रेटेजी जिसका पढ़ के ही नहीं हुआ, मैं उसके लिए दे सकता हूँ। आप ऑब्जेक्टिव ठीक से करो, डिस्टिंग्विश अच्छे से करो, ट्रू और फॉल्स अच्छे से करो, और क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से करो। And those who want to score big, selection of answer is the USP in SP. उसके लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेटर को ओन वर्ड्स में लिखने के बजाय मैं बोलूँगा बुक का लैंग्वेज आप अडेप्ट कीजिए, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखिए, अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए, फ्लोट चार्ट बनाइए, और राइट इन अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग फॉर SP, especially for SP I'm talking, in SP and OC. So these are the points you should consider while applying in when you are to score the marks in board exam for SP. And OC, I'm telling you, you go for chapter number, that is, I don't remember the chapter, but I'm telling you, consumer protection का topic, social responsibility, chapter number 1 है। ये 3 टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क दिलाएगा पास आउट होने के लिए। और जो जिसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, यू फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव पूरा कर लो, ट्रू और फॉल्स वगैरह करो, डिस्टिंग्विश करो, ये 3 चीज़, और आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स, ये जो चीज़ें हैं छोटे छोटे, ये कर लो, आराम से पास आउट हो जाओगे। बट आपको सबसे ज़्यादा और कौन से टॉपिक करने चाहिए, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर नंबर 1 जिसमें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब है, और उसको छोड़ के आपको मैनेजमेंट के जो 2 टॉपिक है वो करने चाहिए। आराम से आप 50% से ऊपर निकल जाओगे। और जिसको फुल चाहिए भाई, OCA लूट लो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्यों इसमें रिस्क ले रहे हो, लास्ट में कर लूँगा, हो जाएगा। इजी सब्जेक्ट को तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम इजी करेंगे, इजी को बाद में करेंगे, और डिफ़िकल्ट हमें आता नहीं और हमको चाहिए फुल, कहाँ से करोगे? प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है OCSP में, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए। अगेन आई विल टेल, सिलेक्शन ऑफ आंसर आपको कम से कम 5% का ग्रोथ दिलाएगा, कम से कम, in individual subject. So if you have any problem regarding the strategy, whatever was possible from my side in the given little span of time, आज मैंने आपके लिए वक्त निकाला है और अलग से आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ,
ताकि बोर्ड एग्जाम तक ये हर बच्चे के पास पहुंच जाए। वायरल हो जाना चाहिए आपके कॉलेज के ग्रुप्स, क्लासेस के ग्रुप्स, आपके सोसाइटी के ग्रुप्स, जहाँ पे भी पॉसिबल हो। ये एक सोशल कॉज के लिए, ये कोई मेरे क्लास का मैं बोल नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे आके एडमिशन ले लो, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन किसी का तो अच्छा कर दो भैया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रेटेजीज आप लो। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए और हम लोग आपको रिवर्ट करेंगे उस कमेंट में, या फिर आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं 9022380636। ये क्लासेस वाकबिल में है, थाने घोड़बंदर रोड। एंड अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज अक्षय चंदे। माई क्लासेस इज Akshay Study Circle purely for commerce. We give services for 11th, 12th, FYSY, TY, BCom, BAF, BMS, BFM, BBI, everything in bachelor's, and again MCom, CA Foundation, CS Entrance, and CS Executive. So I'm ending my words. So you prepare this strategy, and you just get the maximum out of it. I'm wishing you from the bottom of my heart that though you have not taken admission at my class, then also I'm doing my social responsibility, whatever is possible from my side, that you get the good marks and you should have a bright future, and just bless me with for my good deeds. All the best. Thank you.